Hello, good morning students. Welcome back once again. In last video we have done chapter 1 and we already have done the complete exercise and question answers. So now we will begin with chapter 2, that is Windows 7 introduction and its feature. The main motto to learn about this chapter is about Windows 7 features, understanding control panel, understanding date and time settings, taskbar and start menus, mouse settings, sound settings, components of a window and disk cleanup. These all topics we will discuss in this chapter. So let's begin with introduction. Windows 7, you know, that is a very popular operating system. Nowadays still it is in use, but Microsoft have released the newer version of Windows 7, Windows 8, 8.1 and Windows 10 now. But as per the CBSE guidelines, we have to follow Windows 7 operating system. So before going too deeply in the Windows 7, just we want to know what are the basic Windows 7 features. Actually, Windows 7 features are Sneak, Aeroflip, Seek, Snap and Jump List. So let's understand what do you mean by the Sneak. Actually, the Sneak feature of Windows 7 shows you on the taskbar a preview of all the opened windows in miniature form. This feature is useful as it saves your time. You need not to restore different windows to search your particular window. You just use Sneak to go to the required window. For example, if you have opened the two windows in Windows Explorer, one is of Dell folder, another is of DPS folder. So by the name you can click anyone, it will get opened. If you have opened like this, so this is Word window. So whenever you will click on any icon present on the taskbar, all the related windows to that icon will get appeared. Next one is Aeroflip. Actually, Aeroflip is used to view all the windows running background at your end. The different Sneak features and the difference between Sneak feature and Aeroflip feature is that Sneak feature shows many windows related to your particular icon on the taskbar, while on the other hand, Aeroflip feature shows many windows of all your other windows arranged in an order, showing the most recently windows used at the top. To use this, we should have to use window key plus tab key. So when you press this key combination, this kind of Aeroflip you will get visible here. Right now I'm using this software. Due to this, I'm unable to show you the Aeroflip feature. So you can try at home. Window plus tab key. Then Shake feature. Shake feature is just then Shake feature. If you are working in a window in restore mode and are getting confused by other what opened window are there at the background, and then this feature can be quite helpful for you. It minimizes all the opened window except the window you are working right now. To do this, just click and hold the button on the top of the title bar and drag at that side. It will minimize all other windows. Right now, due to this software, windows are cannot be minimized. So whenever you left it, it will get opened and restore back to the original window. Then Snap feature. Snap feature is just used to arrange the two windows. Suppose you are working on two windows parallelly and on the same screen you want to keep opened both of them. So just do this, click on the title bar, drag it to the right side or the left side and left it. Another window if you want to open, then again do this and drag it to the another side. Both windows get opened at the same time. So this is feature of the Snap. To open again, double click on the title bar, you will get restored to your original window screen. Then Jump list is used to see the all the opened window of a similar type. For example, here MS Word, I have opened two documents. So this, whenever we will click on any one of the document, we will go directly to that document. So this is the jump list. According to this, we don't need to search one more thing like this. All three folders are opened here.
So in this way we can go to directly to that jump folder. Then we will discuss about control panel. What is a control panel? Actually it is the main key of the computer system where all the security features and all the kind of the settings of hardware and software can be done using this control panel. So how to open the control panel? Just click on the start menu, then click on the control panel button. Whenever you will click control panel button, this window will appear containing the few settings links like system and security. This link provide you all the securities related to your system. User account and family safety, this link will give you the account details. You can manage your accounts and your family members accounts as well. Network and internet, all the network related settings can be done using this link. Appearance and personalize, how your screen will get appeared, what are the font size, what are the background screen, all the things can be done using this. Even you can set your resolution of the screen as well. Hardware and software. Sound, hardware and sound means all the external hardware connected with your computer like keyboard, mouse, printer, all can be managed using this link. Clock, region and language, this link can be used to reset the clock time, to set the region, to set the language of the computer system. Program feature is used to manage all the programs. Either you want to install or uninstall the program, all the things can be done using this program link. Ease of access, is just used to apply some shortcuts to access all the toolbars. Then next topic is system security. We have already done about this appearance, clock. Now date and time settings. There are two methods to set the date and time setting. One is using control panel, or one is using directly go to the notification bar. Actually on the title bar, sorry, on the task bar at the right side, all you are it is visible here at the right side, this area where link, Google Chrome sign, battery sign, speaker sign and date and time, this all area is known as the notification area. So just click on the date and time option, click change date and time setting. You will get opened the window for to change the date and time. Change date and time, click here, another window will appear, और यहाँ से आप कैसा भी कोई भी date and time चेंज कर सकते हैं. Further, if you want to change the calendar setting as well, right now look at here, calendar setting is 05/30/2020. इसके बाद अगर आपको चेंज करना है, चेंज कैलेंडर सेटिंग, देन यू कैन चेंज कैलेंडर सेटिंग्स. आपको मंथ पहले देखना है कि डेट पहले देखना है या ईयर, यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. यहाँ से आपको अलग अलग फॉर्मेट्स में अवेलेबल आपको डेट एंड टाइम मिलेगा. यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे आपको डे जो है, नेम ऑफ द डे भी आपको मिल सकता है. जैसा आपको चाहिए यहाँ से आपका सेटिंग में अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद आपका आता है डेट एंड टाइम के बाद रीजन सेट. रीजन सेट में क्या आ जाता है आपका चेंज टाइम जोन जो है वो रीजन सेट का काम करता है. राइट नाउ वी हैव सिलेक्टेड आवर टाइम जोन चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली. इट इज़ 05/30, 05:30, यानी कि इट इज़ स्टैंडर्ड टाइम जोन फॉर इंडिया. देन टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू सेटिंग्स. टास्क बार सेटिंग्स कहाँ से मिलती हैं हमें? कंट्रोल पैनल में जाएंगे. कंट्रोल पैनल से आपको मिलेगा अपीयरेंस एंड पर्सनलाइज. यहाँ से आपको टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू सेटिंग्स मिलते हैं. ये टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू में क्या आता है, यहाँ से देखो ऑटो हाइड टास्क बार. ऑटो हाइड टास्क देखो, सबसे पहले लॉक द टास्क बार. लॉक द टास्क बार का होता है आपने टास्क बार को लॉक किया हुआ है, आप इसको मूव नहीं कर सकते. ठीक है. उसके बाद है ऑटो हाइड टास्क बार. ऑटो हाइड टास्क बार को सिलेक्ट किया हमने तो क्या होगा कि जो ही आपका कर्सर टास्क बार से बाहर चला जाएगा, टास्क बार आपको अपीयर नहीं होगा. तो उसके लिए इसको जस्ट अप्लाई करते हैं. ठीक है, और ओके किया. देखो आपको अगर आपका कर्सर टास्क बार पे है तो टास्क बार आपका विजिबल है. जो ही हमने ऊपर लेके आए टास्क बार आपका गायब हो गया. दूसरा इसका जो मेथड है, सॉरी, जो दूसरा जो इसका ऑप्शन था वो था आपका यूज स्मॉल आइकन्स. यूज स्मॉल आइकन्स में क्या आता है, जो भी टास्क बार पे अभी आपको बड़े बड़े आइकन दिख रहे थे उसके बाद अभी छोटे दिखेंगे. देखो अभी देखो, लुक द चेंज हियर. अब सारे आइकन आपके छोटे छोटे हो गए.
So this was the use small icons. So I want to just use the bigger one icons so that you can it can be clearly visible to you. Then taskbar location, you can also adjust your taskbar at the top, bottom, left or right. जैसे suppose मैं top पे लेके आना चाहता हूँ, just click the top, your taskbar will move to the top. ऐसे ही आप इसको लेफ्ट राइट भी कर सकते हो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको बॉटम पे ही रखते हैं। उसके बाद आपको है टास्क बार बटन्स जितने भी हैं, जो आपके बटन्स हैं टास्क बार के ऊपर, ये वाले ऊपर वाले जो बटन हैं, ये अभी आपको जितने भी स्मॉल साइज में दिख रहे हैं। उसके बाद ऑलवेज कंबाइन हाइड लेबल्स, कंबाइन व्हेन टास्क बार इज फुल। इसका क्या मतलब है कि अगर आपका टास्क बार फुल हो जाता है तो ही कंबाइन करेंगे, अदरवाइज ये स्प्रेड हो जाएंगे और जितने भी विंडोज हैं उतने ही सेम आइकन इसको आपको मिलेंगे। ऑलवेज कंबाइन में क्या आता है कि मल्टीपल विंडोज अगर एक ही टाइप की खुली हुई हैं तो वो आपकी एक साथ कंबाइन रहेंगी। जब आप उस पर क्लिक करोगे, मूव करोगे, तभी आपको वो लिस्ट में दिखेंगी। जैसे मैं आपको दिखा दूं, अब ये देखो एक ही में खुली हुई है, आप कंबाइन करोगे तो लिस्ट आपकी खुल जाएगी। उसके बाद आपका आता है टास्क बार के अंदर स्टार्ट मेन्यू सेटिंग्स, स्टार्ट मेन्यू, ऑटो हाइड स्मॉल आइकन। उसके बाद स्टार्ट मेन्यू सेटिंग्स। स्टार्ट मेन्यू सेटिंग्स में क्या आता है आपका, ये जो है इसमें स्टार्ट मेन्यू सेटिंग्स में आपका आता है, क्लिक करेंगे स्टार्ट मेन्यू सेटिंग्स को तो यहाँ पे देखो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है पावर की बटन से यहाँ पे हमने शट डाउन को सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन आप शट डाउन की एक्शन को भी चेंज कर सकते हो। आप कंटिन्यू पावर बटन दबाए रखोगे तो इनमें से किसी एक को भी सिलेक्ट करोगे, आपको वही एक्शन परफॉर्म होगा। अगर सपोज आपने रिस्टार्ट पे क्लिक किया और पावर बटन को कंटिन्यू दबाए रखा तो आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। गुड द पॉइंट। लेकिन जनरली हम इसको शट डाउन पे ही रखते हैं। उसके बाद आप स्टार्ट मेन्यू को कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। कस्टमाइज़ में करने के लिए क्या होता है कि आप अपने टास्क बार के ऊपर क्या क्या आइकन्स आपको डिस्प्ले करवाना चाहते हो, कंट्रोल पैनल के अंदर क्या क्या लिंक देना चाहते हो नहीं। तो यहाँ पे देखो कंप्यूटर में डिस्प्ले एज ए लिंक, डिस्प्ले एज ए मेन्यू, डू नॉट डिस्प्ले दिस आइटम। तो डिस्प्ले एज ए लिंक यानी कि जो भी आपका कंप्यूटर का अगर आइकन है तो डायरेक्ट उसका लिंक यानी कि क्लिक करेंगे तो माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। ऐसे ही कंट्रोल पैनल का, ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स का, ऐसे ही डाउनलोड, जितने भी आप सेटिंग्स करोगे, ये बहुत सारी सेटिंग्स हैं। आप इसको वन बाई वन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। उसके बाद आपका आता है, इसको हमें अप्लाई कर देते हैं शट डाउन पे ही। उसके बाद आपका टूल बार आता है। टूल बार के अंदर क्या होता है कि आपका टास्क बार के ऊपर ही नोटिफिकेशन एरिया में टूल बार लगा सकते हो। जैसे अभी मैंने उस लिंक को सिलेक्ट किया हुआ है और ओके किया हुआ, तो यहाँ पे देखो ये जो लिंक है मेरा लिंक मिला हुआ है और इस लिंक को मैंने सेट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने सजेस्टेड साइट्स के अंदर मैंने इसको डाला हुआ था, किसी भी कोई एक साइट डाली हुई थी। तो जो ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो IE ऑनलाइन इस पर मैंने एक लिंक डाला हुआ है, तो IE ऑनलाइन डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। उसके अलावा अगर मैं लिंक को हटा के कोई एड्रेस टाइप करता हूँ, सपोज मैं एड्रेस लिंक को लेके आता हूँ टूल बार के ऊपर, ये थोड़ा सिस्टम स्लो हो गया है हैवी सॉफ्टवेयर की वजह से, विंडोज 7 है इसलिए इट इज़ टेकिंग टाइम, बी पेशेंस। ओके, ये देखो जो भी हमारा लिंक था वो डायरेक्ट लिंक यहाँ पे ओपन हो गया है, ठीक है, गूगल क्रोम के अंदर। मैं इस गूगल क्रोम को क्लोज कर देता हूँ क्योंकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो जस्ट आपको समझाने के लिए था। तो आप ऐसे ही कोई भी लिंक दे सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं एड्रेस की। तो मैंने लिंक को हटा दिया, सॉरी लिंक, और इसको हटा दिया एड्रेस। इसको मैं अप्लाई करता हूँ तो देखो एड्रेस बार आ गया अपने पास। इस एड्रेस बार में हम क्या करते हैं जनरली, अगर हमें किसी भी फाइल को ओपन करना है और एंड वी रिमेंबर द पाथ ऑफ दैट फाइल, तो हम उसको डाल सकते हैं। ऐसे ही जैसे डी ड्राइव के अंदर हमने क्या क्या डाला है, बाय डिफ़ॉल्ट ये डी जैसे हमने डाला तो वो डेस्कटॉप पे सर्च करेगा, और उसके अलावा जितने भी अगर ड्राइव उसके नाम से कोई है तो ड्राइव, जैसे ड्राइव के बाद ऐप, तो डायरेक्ट उसको पर्टिकुलर फोल्डर को खोल देगा। डी ड्राइव के अंदर ऐप्स नाम का फोल्डर था, उसके अंदर हमने इसको ओपन किया। ऐसे ही अगर आप कोई और पाथ सेलेक्ट करना चाहते हो तो इसको ड्रॉप डाउन जो है इस पर क्लिक करके कोई अनदर पाथ पे भी आप जा सकते हो, या आप अपना कोई स्पेसिफाइड पाथ कहीं से कॉपी करके यहाँ पे डायरेक्ट डालोगे, वो फाइल डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपका डेस्कटॉप लिंक है, यानी कि डेस्कटॉप लिंक को भी अगर डालना है तो आपको डेस्कटॉप भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपका डेस्कटॉप लिंक आ गया, ठीक है। ये जो आपका इधर खोलोगे तो डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा।
कि आपका व्हाट आर द फाइल्स एंड फोल्डर्स अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप, एवरीथिंग विल गेट अपीयर्ड हियर। व्हाट द थिंग। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिस्प्ले एज ए लिंक, डिस्प्ले एज ए मेन्यू, ये हमने कर लिया। डू नॉट डिस्प्ले आइटम, ये भी हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद माउस सेटिंग जैसा तो आप सभी ऑलरेडी जानते ही हो कि माउस सेटिंग के अंदर माउस के कर्सर की उसकी स्पीड, उसकी पॉइंटर एक्सेस करने की जो मूवमेंट है, वो सारे कुछ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। कैसे करते हैं, आपको कंट्रोल पैनल में जाके हार्डवेयर एंड साउंड पे जाके हार्डवेयर एंड साउंड को सिलेक्ट करना होता है, और यहाँ से आपको माउस, ये वाला माउस सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद जब माउस को सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने एक माउस कंट्रोल पैनल की विंडो ओपन हो जाती है। उस विंडो के अंदर वो सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं जो आप एक माउस की सेटिंग्स में आप इसको कर सकते हो। राइट नाउ अभी मैं डेल का ऑप्टिकल माउस यूज़, तो ये देखो मैं इसका ऑप्टिकल माउस यूज़ कर रहा हूँ डेल का, और यहाँ से मुझे इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन और हार्डवेयर की डिटेल मिल जाती है, और साथ में मुझे माउस प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे बटन जो है अभी देखो मैंने मीडियम इसकी स्पीड डाली हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको पॉइंटर्स को सेलेक्ट कर सकते हो, डिफरेंट शेप्स ऑफ द पॉइंटर्स आर अवेलेबल हियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप विंडोज़ एरो की कोई भी टाइप की स्कीम्स आप यहाँ से सेट कर सकते हो। पॉइंटर ऑप्शन के अंदर भी आप डिफरेंट ऑप्शन सेट कर सकते हो, लाइक दिस पॉइंटर ऑप्शन, स्पीड फास्ट कर सकते हो इसको ऑटोमेटिकली। डिस्प्ले पॉइंटर, जैसे अगर आपको मल्टीपल विजिबिलिटी जानी है, अगर आपको इसको पॉइंटर को मूव कर रहे हो तो ये जो ड्रैगिंग सिस्टम है, तो दीज ऑल व्हील भी का भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, व्हील ऑप्शन का। उसके बाद हार्डवेयर्स में तो ये आपकी कुछ माउस प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप सेट कर सकते हो। जनरली हम एरो को ही पॉइंट करते हैं, जो हमारा सिंपल एरो होता है इसी को हम लेके चलते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ये एक फिक्स इसकी जो जिस पॉइंट पे हम क्लिक करते हैं डायरेक्टली उसी को फोकस करता है ये। और एंड ऑल्सो इट हेल्प्स अस टू डिटेक्ट द राइट प्लेस वेयर टू क्लिक। देन नेक्स्ट इज साउंड सेटिंग्स, पॉइंटर सेटिंग हमने स्पीड वगैरह डिस्कस कर लिया। अगर कुछ भी पेंडिंग हो तो आप इसमें से एक बार पढ़ लेना। साउंड सेटिंग्स में हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी साउंड डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, रिकॉर्डिंग डिवाइस है या प्लेबैक है, साउंड है, कम्युनिकेशन है, जितने भी हैं हम उनकी सेटिंग्स अप्लाई करते हैं यहाँ से। उसके लिए क्या करते हैं, हार्डवेयर पे डिवाइस प्रिंटर सॉरी इस पे कंट्रोल पैनल पे जाते हैं। देन वी विल गो टू द हार्डवेयर एंड साउंड। यहाँ से हम साउंड सिस्टम साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं, उसके ऑडियो और वीडियो डिवाइसेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हम जो वॉल्यूम लेके चलते हैं वो मैक्सिमम वॉल्यूम लेके चलते हैं। अगर आपको एक वॉल्यूम का लेवल फिक्स करना है तो उसके बियॉन्ड आपका सिस्टम नहीं एक्सेप्ट करेगा, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। प्लेबैक क्या होता है, प्लेबैक टैब विच शोज यू वेरियस लिसनिंग डिवाइसेस लाइक स्पीकर दैट आर अटैच्ड टू योर कंप्यूटर। रिकॉर्डिंग टैब में क्या होता है कि कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस, जैसे कि आपका माइक्रोफोन है वो कनेक्टेड है कि नहीं है। आपके पास साउंड्स टैब शोज यू वेरियस साउंड्स थीम यूज्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। कितनी आपके साउंड थीम्स हैं, ये सारे आप यहाँ आप साउंड के अंदर प्लेबैक रिकॉर्डिंग अलग अलग टैब को स्क्रीनशॉट के हिसाब से दिखाया गया है। कम्युनिकेशन इज टैब इज यूज टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू ए टेलीफोन लाइन और फॉर मेकिंग रिसीविंग कॉल्स थ्रू योर कंप्यूटर। देन कंपोनेंट्स ऑफ एन ओपन विंडो, ओपन विंडो के अंदर को इसने यहाँ पे एम एस वर्ड की विंडो को एक्सप्लेन किया हुआ है। आप एम एस वर्ड की विंडो को भी लेके चल सकते हो। आप कोई भी अनदर विंडो को एक्सप्लेन करना है तो क्या होता है, देखो जैसे मैं ये है हमारी एम एस वर्ड विंडो, यहाँ पे आपका ये टाइटल बार होता है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। टाइटल बार के राइट साइड में ये आपके बटन्स होते हैं, क्लोज बटन, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, और ये हेल्प बटन होता है, ठीक है। उसके बाद ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शन होता है कि आपका रिबन कैसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये रिबन बार के ऊपर ये टैब्स होते हैं, मेन्यूज़ बोलते हैं इनको जनरली, फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट। उसके बाद ये आपका रिबन होता है और इसमें क्विक एक्सेस टूल बार्स दिए होते हैं। जनरली ये अलग अलग उसके अंदर डिवाइडेड होते हैं सेक्शंस के अंदर, लाइक क्लिपबोर्ड सेक्शन, फॉन्ट सेक्शन, पैराग्राफ सेक्शन, स्टाइल सेक्शन, एडिटिंग सेक्शन। यहाँ पे जहाँ पे आप टाइप करते हो इसको वर्क एरिया बोलते हैं। इनको हॉरिजॉन्टल और इनको बोलते हैं वर्टिकल रूलर, और इनको आप बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर।
ये क्या काम करते हैं, आपकी पोजीशन फिक्स करते हैं कि कहाँ से आपका, कहाँ पे आप राइट कर सकते हो, कितना स्पेस आप ऊपर और टॉप और डाउन से छोड़ सकते हो। उसके बाद आपका, इसके बाद इसमें स्टेटस बार होता है, जैसे पेज 1 ऑफ 1। आप अभी जो ओपन है ये पेज 1 है। अगर आप इसमें सपोज एंटर करके हम मल्टीपल पेजेस पे जाते हैं, मैं एंटर कर रहा हूँ और कुछ जनरली ऐसे टाइप कर रहा हूँ, मैंने पेज नंबर 2 पे ओपन की चला गया, तो यहाँ पे देखो पेज 2 ऑफ 2, टोटल 4 वर्ड्स आर देयर। क्योंकि फॉरवर्ड कैसे हो गए, 3 एंटर किया मैंने और एक ये डाल दिया। उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको इसका स्टेटस दिखा देगा कि ये पेज 1 पे है, 4 वर्ड हैं इसके अंदर, पेज 1 ऑफ 2, टोटल 4 वर्ड्स। ओके, वर्ड्स को काउंट किया, टोटल 1 2 3 और 4 वर्ड्स हैं इसके अंदर ऑब्वियसली। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट रीडिंग मोड में है। अगर आपको रीडिंग मोड में ओपन करना है तो रीड मोड में एक इंटायर स्क्रीन पे आपको ओपन हो जाएगा। ओके, आप इसको ऐसे रीडिंग मोड में ओपन कर सकते हैं, जैसे आपकी बुक ओपन होती है ना, बोथ साइड बोथ पेजेस ऑन द स्पॉट, ऐसे ही आपका ये ओपन हो जाएगा। ये वापस मैं इसको एडिटिंग मोड में आता हूँ तो और कुछ पॉइंट है, जैसे वर्क एरिया होगा, वर्टिकल स्क्रॉल बार हो गया, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, ये रूलर्स होते हैं, ये रिबन, टाइटल बार, कंट्रोल बटन। ओके, उसके बाद डिस्क क्लीनअप, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट के अंदर क्या होता है कि अगर आपकी कुछ टेम्प्रेरी फाइल्स हैं, रिसाइकिल बिन के अंदर फाइल्स पड़ी हैं, या सिस्टम की डाउनलोडिंग में कुछ फाइल्स पड़ी हैं, तो डिस्क क्लीनअप ज़रूरी होता है। डिस्क क्लीनअप कई बार क्या करता है कि अगर हमने काफ़ी समय से हमारे सिस्टम की डिस्क क्लीनअप नहीं किया तो हमारा सिस्टम स्लो डाउन हो सकता है। तो डिस्क क्लीनअप होता क्या है, actually disk cleanup tool is used to search on your hard disk for files that can be deleted from your computer, and that file will not affect the functioning of your computer or personal files. How we can delete these files? We can delete temporary internet files, we can delete recycle bin if it is not empty, Windows temporary files. So how to access the disk cleanup? Just click on the start menu, select all program, then select accessories, then accessories के अंदर आपका आएगा सिस्टम टूल्स, यहाँ से आपको डिस्क क्लीनअप, ये वाला आपको डिस्क क्लीनअप मिल गया। सेलेक्ट द ड्राइव यू वांट टू क्लीनअप, अब आपको जो भी ड्राइव सेलेक्ट करनी है आप उनमें से, या किसी को फोल्डर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो आप वो फोल्डर भी सिलेक्ट कर सकते हो और आपका डिस्क को आप क्लीन कर सकते हो। ओके, अभी मैं आप करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले किया है इसको। उसके बाद आप चूज़ व्हाट टाइप ऑफ फाइल और फोल्डर यू वांट टू डिलीट। अगर आपको किसी पर्टिकुलर फाइल को डिलीट करना है या पर्टिकुलर फोल्डर को डिलीट करना है तो वो भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप एंड्रॉयड के अंदर आजकल करते हैं कि हर बार आप ऑटोमेटिक सेटिंग में डाल देते हो कि एवरी मिडनाइट एट 12 AM योर सिस्टम विल क्लीन अप ऑल द टेम्परेरी फाइल्स और कैच फाइल फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन, तो वो ऑटोमेटिकली वो डिस्क क्लीन अप होता है। ऐसा ही आप कंप्यूटर के अंदर डिस्क क्लीन अप कर सकते हो, टेम्परेरी फाइल को डिलीट करके, डाउनलोडिंग फाइल को डिलीट करके, या आपकी कुछ टेम्परेरी फाइल को कैसे डिलीट करते हैं, सिंपली कंट्रोल विंडो +R दबाते हैं, विंडो की +R इसमें, उसके बाद परसेंटेज का साइन लगा के टैम्प लगाते हैं TEMP और परसेंटेज लगा के एंटर कर देते हैं। तो वो जितने भी आपकी टेम्परेरी फाइल्स हैं कंप्यूटर के अंदर वो सारी हो जाएंगे, और Ctrl+A करके आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हो और शिफ्ट और डिलीट के साथ इनको डिलीट कर सकते हो। जो ही आप शिफ्ट डिलीट दबाते हो तो ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू रिमूव दिस फाइल फ्रॉम रिसाइकल बिन, क्योंकि आप शिफ्ट डिलीट के साथ करते हैं तो ये डायरेक्ट रिसाइकल बिन में भी नहीं जाती हैं। मैं आपको बता देता हूँ, डिलीट दो तरह से होता है सिस्टम के अंदर। एक तो सिंपल डिलीट होता है, उससे क्या होगा कि आपकी जो फाइल है that will be deleted from your current file or folder directory, and a copy or an image, virtual image of that file will get stored in a recycle bin for a generally it is of for a 30 days. But if you want to do not want to restore that deleted file in the recycle bin, you just use Shift+Delete. This key combination will permanently delete your file from the computer system. Its copy will no longer will go to the recycle bin, and press enter की, आपके जितने भी टेम्परेरी फाइल्स हैं वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। इट हेल्प्स योर कंप्यूटर सिस्टम ए लिटल टू स्पीड अप। अभी ये फाइल्स डिलीट हो रही हैं, लुक एट हियर, देन आई विल जस्ट स्किप दिस,
select all the and skip, because these few 3 or 4 files cannot be deleted, because these are on these files we are working right now. Then okay, this was all about this chapter. This chapter is about Windows 7 only, so you have, I think it's very helpful for you. You can try to solve your exercise, book exercise. Later on I will share you the solution of all these things. So thank you students, watch the video carefully. Have a nice day. Thank you very much.